तुसा सुनी? मैं थोड़ी जी सुनी है। ठीक हो गया। ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਮੁਸਲਸਲ ਸਾਰੀ ਬਰੌੜ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਟੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ 40 ਜਿਤਨੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਨਫੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਬਕਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਵਨ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ। टी अहमद साहब ने मेरा नाम लिया, मैं आया दौड़दा, मैं अनम्यूट करके मैं क्या अलामा साहब ये गलत अल्फाज ने, सख्त अल्फाज ने, ये ना करो। उत्थे अगले बंदे ने मेरे मुंह ते हवाला मारता कि भाई जेड़े अल्फाज मैं ऐन इस तरह लिखे तुहानूं वहा देना, वो ना किताब च कट के वहा छड़े। फिर उन्हें आख्या कि गलत अल्फाज ने, मैं हुण उत्थे उन्होंने गलत कहंदा, अहमदियां कहना नाउज़ बिल्ला गुस्ताखी कर छड़ी। जे मैं कहां कि नहीं गलत ते उन्हें आखना मैनूं बोलन दिओ। मैं उत्थों आख्या भाई मेरे हथ जुड़े, तुसीं आपस विच कर लो, मैं सिर्फ ये कह रहा कि किसी दे बारे कोई गलत अल्फाज सख्त अल्फाज ना बोलो। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਹਾਂ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਹਾਸ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸੀਸੀਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਣਾ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਹਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ੀਰ ਵਹਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, उससे बात की ਇਹ ਵਹਾਬੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਦੋ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕਿਆ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਹੋਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਬੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਤੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਤੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ। फिर तो तुसी ये तकाजा करो कि अमर नज़ीर जेड़ा वो अहमद रज़ा खान बरेलवी ते क्यों नहीं फतवा लांदा? उन्हें कितनी वड्डी गुस्ताखी की। बंबास्टिक ते भज के फतवा ला छड़िया। बंबास्टिक ते फतवा जरीउल्लाह ने लाया मेरा भाई। अच्छा तुसी ये कहना चाह रहे हो कि एक मिनट, तुसी ये कहना चाह रहे हो कि अमर नज़ीर नहीं कहता कोई गुस्ताखी हो? अमर नज़ीर ने तो अपने मुंह किया कि मेरे फतवे तोड़े वास्ते बेमानी नहीं, तुसी मेरे मुखालिफ हो। अमर नज़ीर दा की फतवा है, मुखालफियत होवे या ना होवे? अमर नज़ीर कहता वो गुस्ताखी है कि नहीं है? ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਇਹ ਪਲੀ ਨਾ ਲਵੋ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਜਰੀਉਲਾ ਤੇ ਕੱਲ ਹਫਤਾ ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਮੀਲ ਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਕੋਲ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਪਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕੀ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਫਾ ਬਲਕਿ 3 ਦਫਾ ਰੱਖਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਤਵਾ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਤਵਾ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਫਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤੀ ਹੱਦ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਫਤਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਦ ਲਗਾਈ? ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ? ਇਹਨੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ 2-3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆਗਾ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਉੱਥੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਡਰੇਟਰਸ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਡਿਬੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤਾਰਕ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਫੜਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਾਂ ਪੜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋ। ਦਾਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਯਾਰ। ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਕਾਮਨ ਅਹਿਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਨਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਕਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਕ ਛੜਾਂ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਾਨਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੂੰ ਲਾਨਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਖੁਦ ਆਏ ਹੋ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਚਾਓਗੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਪਿਆ ਬਕਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬੋਝ ਪਾਓ, ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है सर, मैं एमरजेंसी चाहे तो मौका दे दोगे कि जावा? लो मौका लो जनाब, तुसां भी रखो मेरे सिर ते तलवार। पहले गल तो तुसीं ये दसो उत्थे दो अहमदी मोड बनाए ने, वो कह रहे सी एक ते है प्रोफेसर साहब सन ना तोड़े, ये थले आई कोनी से निकल के थले से दूजे कह रहे सी, दूजे जेड़े सन
ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਹੀ ਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਯੂਸਫੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਮੁਲਦ ਹੈਪੀ ਤੇ ਦੋ ਅਹਿਮਦੀ। ਸੁੰਬਲ ਤਾਹਿਰ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟਰ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਸਾਈ, ਇੱਕ ਯੂਸਫੀ ਵੀ ਸੀ। ਯੂਸਫੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਮੋਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਯੂਸਫੀ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ CCD ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ TMN ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਚਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਟੋਕ ਸੁਣਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਜਰੀਉੱਲਾ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਣ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਮੁਫਤੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਰਹੀਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਮਸਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਛੇੜੀਏ, ਹਵਾਲੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਕ ਚਿਕਾੜਾ ਕਾਹਦਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾਮਤ ਬਰਕਾਤ ਹਫਜ਼ੁल्लाह, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਹੋ, CCD ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਔਰ TMN ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾ ਛੜੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਪੜਾ ਲਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਆਸਾ, ਉਹਨੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਫਾਰਕ ਉੱਥੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰ। सख्त लफ्ज इस्तेमाल ना करो ना अली अकबर साहब, सख्त लफ्ज इस्तेमाल ना करो। वो इत्थे कोई नहीं मॉडरेटर है, ਇੱਥੇ 50 ਦਫਾ ਮਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਮॉडरेटर है, कोई अहमदी, किसी दी गैरत ने जोश नहीं खादा। हुन मेरे ते आमदे अटैक करन, वो लफ्ज लानत क्यों इस्तेमाल हो गया? अस्तगफिरुल्लाह, मैं तौबा करना, कान जोड़ के माफी मांगना। भाई बोला है ना, बोल दिया ना, हाफिज साहब नहीं वर्ड यूज करेंगे, इतना ही मनु बोल दियो, गाल खत्म। अली भाई एक सेकंड जरा, भगवान भाई इससे ज्यादा मैंने आपकी जात के लिए मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं अली बोला। भाई मैं बड़ी देर से बैठा हूँ, थोड़ी सी बात करने जरा। जो भी अहमदी 2-2 मिनट लगा के बात करता है ना, उससे बड़ा पागल आदमी दुनिया में नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको, सुन ले जरा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो आपके 2 मिनट होते हैं ना, उनको कोई केयर नहीं है, आप जो मर्जी कह दें, ठीक है। जब उनके 2 मिनट होंगे ना, वो भाई साहब आपके नबी के ऊपर जाएंगे, ठीक है, जिनको आप हुज्जत मानते हैं। और उनका मकसद ही ये होता है कि कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढे, ये 2 मिनट जो मर्जी कह ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने 2 मिनट का वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह बात नहीं होती, बात इस तरह होती है, जब बात करनी होती है, तय करनी होती है, ठीक है, कि हमने ये मौजू पे बात करनी है, इससे आगे पीछे नहीं जाना। जब बंदा आगे पीछे, जब मौजू तय होता है, उसके असूल तय होते हैं। विदाउट असूल अगर जाएंगे तो वही होगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि एक हिंदू या एक क्रिश्चियन, उसको ले आओ और अमन नज़ीर को बैठा दो 2-2 मिनट लगा के, मैं देखता हूँ भला बात करता है उसके साथ। आप लोग बहुत क्या नाम है मासूम हो, 1 मिनट में क्या नाम है, पता नहीं क्या वजह है, ये क्या रीजन है कि वो फतवे या उनके लिए मैटर ही नहीं करते। अरे साबर सैयद साहब, आपने 30 सेकंड मांगे थे, सुन ले मेरी बात, मैं अपनी गाली वापस लेता हूँ। ब्लड प्रेशर हाई इन लोगों ने किया हुआ था। सुभान अल्लाह साहब गए, शातमियत पे बात हो रही है, मोहम्मद जमील अहमद नागी साहब वहाँ से बात करके चले गए, बात खत्म हो चुकी थी। इन्होंने जाकर के पहले कहा जी मैं हवाला भरना है जी, सबसे पहले इन्होंने कहा। उसके बाद मुकरम CCD साहब गए, कहते खोती ठंडी होंदी जी, किताब च लिखी। यार मेरे नाल गल ही नहीं कीती किसी ने, मेरे ते मैं ठोक गल सुन लो ना, तुसी गल करके ते आ गए, तुसी कि मैं भी चलना वा जी। बाद च TMN साहब वो आए थे गलत पार के आगे, उन्होंने फर लिया, आते मैं भी फर लीती सी। ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਮ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤਲਾਵਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ, ਜਾਓ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਵੇ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਫਿਰ। मिनट लगाने वाला ना, ये इसको सोचे यार 2-2 मिनट वाली गल बिल्कुल साबर साइड साहब दी ठीक है, मैं इन्हां दे नाल हां। साबर साइड साहब कल मैं रखना तुहाडा टाइम,
ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਵਹਾਓ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸਲ ਕਰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇ ਆਖਣ ਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹ नहीं ठीक, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਮਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ करके वहाओ। हाँ जी सुन, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये अपनी ब्राड पे जाके लगा लेना, ये ले जाना जो सीसीडी साहब ने लगाया ना, ठीक है। अगर वो बात कर गए जो मर्जी कहना, लो जी ये अच्छा तरीका कढ़िया जे सुन ले कि गल मैं नहीं करनी किसी ना। अच्छा सुने ना, बाप भी तो सुने ना। अच्छा तरीका तुसी ये कढ़िया वा गल मैं नहीं करनी, अमली प्रैक्टिकल करके मैं को नहीं वहाना, तुसी सारे मासूम हो ते बेवकूफ हो। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਏ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲੈ ਜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾ ਛੱਡ। ਭਗਵਾਨ ਕੋਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਕੋਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਚ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਚ ਹੋ ਜੇ। ਕੋਚ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ करे करके लोगों को समझाए जी। उस दिन जब मैंने आपके सामने जब आपने कहा था कि आप अमर नज़ीर से बात क्यों नहीं करते, तो मैंने आपको बता दिया था कि जो 85 किताबें हैं हम उसके एक एक लफ्ज़ को सच समझते हैं, ठीक है। और जो मुखालिफिन हैं वो एक एक लफ्ज़ को गलत समझते हैं। जो हमारी और इनके दरमियान कॉमन चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। आपने कहा ये जो आपकी डिमांड है बड़ी वैलिड है, अमर साहब म्यूट ओपन करें, क्या उन्होंने म्यूट ओपन किया था? नहीं डर गए थे, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, भागे थे। नहीं क्या किया था? मैंने कहा था कि खतबे नबूवत और हयात मसीह। तो म्यूट ना ओपन करने की कोई वजह है ना, म्यूट ना ओपन करने या डर गए थे या भागे थे, नहीं और क्या वजह है? जेन्युइन रीजन पेश की थी ना, जेन्युइन रीजन वही मैं आपको कह रहा हूँ ना। अमर नज़ीर साहब से तो आप नहीं बात करना चाहते। एक हर्फ पे आपका कामल ईमान है। अली अकबर साहब वाली तो अब मसला ये है साबर साइड साहब कि सुन ले, आखिरी बात सुन ले फिर आप करें, जरूर करें। मसला ये है कि मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, लेकिन इस तरह घर बैठ के कोच ना बने, इनको अमली मुजाहिरा करके दिखाएं। अमर नज़ीर साहब से नहीं आपने करना, और बड़े बंदे हैं और किसी से आपकी टॉपिक पे डिबेट करवाते हैं, 15-20 दिन मनाजरे करें ताकि ये लोग सीखें उससे और इल्म भी हासिल करें और टेक्निक्स भी। ये होता है असल तरीका तरबियत का। क्या ख्याल है, कल लगाएं फिर बलॉट। देखें आज सारी साहब ने एक बात की कि घर के अंदर वाशरूम भी होता है, इंसान के अंदर स्टमक भी होता है, ठीक है। अगर वाशरूम को वाशरूम पे रखें तो अच्छा लगता है, अगर वाशरूम को उठा के डाइनिंग में ले आएँ या स्टमक को लेके दिमाग में ले जाएं, ठीक है, तो वो चीज़ें बिल्कुल अपसेट हो जाएंगी। तो जिस तरह की आप हवाले की बात कर रहे हैं ना, जहाँ जहाँ पे हवाला लिखा हुआ है ना वहाँ अच्छा भी लगता है, ठीक है, और ज़रूरत भी वहाँ पे होती है, ठीक है। तो इसलिए जो जिस्म के अंदर स्टमक है ना, जहाँ लगा हुआ है वहाँ उसकी ज़रूरत है, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो जो यार आप कैसी बात कर रहे हैं साबर साहिब साहब के, मैं यकीन करें मैं तो शर्मिंदा खुद हुआ हूँ आज कि मैंने आगे उस बंदे को रोका है। सुन लेना बात सुन ले, मैंने आगे उस बंदे को रोका है कि भाई इस तरह के सख्त से बात कर रहे हैं, एक गाल तो कर रहे हैं, 2-2 मिनट लगा के बात करते हैं ना। अच्छा ये तो दूसरों का मसला बन जाता है, उस टाइम अपना मसला नहीं रहता, नजर आता कि यहाँ तो फिर जमात अहमदिया में शामिल हो, फिर वो ज़ाहिद दस्तानी सही बोलता है कि ये शामिल है और फिर ये मसला बनाता ना अपना, नहीं तो उससे क्या मसला, क्या फसाद का इखराज हुआ है या नहीं हुआ। हाँ जी वही क्या करे उसने कहना है। इसके अंदर भी वो क्या कहते हैं, इन्हीं हमारे ग्रुप वालों का कसूर है ना, जो सारे ड्रामे करते हैं इधर, खुद तो उनसे कोई बात नहीं करता ना उनके। सब हमारे बीच में जो मर्जी हो, हाँ उसका जो मसला ही नहीं, जब वो हमारे में है ही नहीं, यही वो दूसरों से बोलता है कि जो भी अहमदी चला जाए भाई तुम्हारा ये मसला चल रहा है, हमारा आपस का मसला हम देख लेंगे। तो फिर इधर क्यों फिर जुबान ओपन होती है ना, ये नहीं समझ आती। असूल उसका बड़ा अच्छा है कि जो अपनी तरफ है वो उधर ही देखे, ये असूल अच्छा है ना। ये तुमसे कहा था तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्यों कह रहे हो कि अहमदी नहीं है, तुम होते कौन हो? ये तुम्हें उससे कहा था, उसके साथ उसने कहा था मैं तुम्हारी मुझे 1-1-2 बता के गया, भाई तेरा मसला की तो अपनी गल कर। बाकी भगवान साहब ने वहां पे कूर चम दिया था, मैंने 2 अहमदी बनाए, 2 प्रोफेसर साहब अपनी बरात से पूरा नहीं बहते, ताड़ी बरात तो ना कितों बहना सी जी, मोड़ तुम देख लो केड़ा बनाया। जिदा चौकस बंदे उधरों बनाए थे, चौकस इधरों बनाना सी ना। अली अकबर वेखना केड़ा कमेंट करता है यार। अली अकबर साहब मैं ही पहला बंदा ही, मैं सब रोड ते कोई बंदा नहीं सी, मैंने कहा यार तुसी ना कमेंटां वास्ते सुने मॉडरेटर बनाओ, इन्हां प्रोफेसर साहब चौके बनाता, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗਿਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਲਲਨੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। किधर गया भगवान तेरा उन्होंने बराल लगाई थी। ये बात गलत है, ये बात गलत है। भगवान आया है, किसी ने भी नहीं उसे कुछ बोला, जिसका अपना पॉइंट था उसने पॉइंट दिया है, नहीं तो हाफिज साहब ने भी उसके साथ स्टैंड लिया है। मेरे सामने भी बात आई है जिसमें वो सही है तो बोला हाँ भाई वो सही है, होस्ट ऐसा ही होता है। जी जी सबर भाई, भगवान जो है ना वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है आज,
उसने कुकड़ों को आमने सामने किया, ये जो स्मार्ट गाय, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो एमडी डिबेटें करने हैं 2-2 मिनट लगा के, उनको ये समझना चाहिए नहीं जैसे स्मार्ट गाय नहीं ਉਹਨਾਂ ਦਾ भाई ठहर के भगवान ਸੀਸੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? अच्छा भगवान भाई ठहरे इधर इधर ना सबर साहिब भाई, मुझे लगता है कि इस टाइम, इस दुनिया में, इस प्लेटफॉर्म पे हर बंदे तो स्मार्ट होना चाहिए। अगर भगवान स्मार्ट है तो उसमें क्या बुराई है? जी सबर साहिब भाई। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये स्मार्ट गाय जो है वो मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, मगर जो हमारे एमडी 2-2 मिनट लगा के, आपको अपनी पोजीशन का पता होना चाहिए कि हमारी वो तो हमारे काबरीन पे जा सकता है, हम किसकी काबरीन पे जाएं? यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वो तो खुला मैदान है, उसकी जुबान है, उसके आगे खुला मैदान है, और आपके आगे खुला मैदान नहीं है। आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए भाई। ये पॉइंट डन हो गया हुआ है, फिर वो भगवान भी शुरू हो जाएगा इस पे ना, या फिर दूसरा भी शुरू हो जाएगा। कि और पॉइंट दें आप भी, उधर आपने डिबेट देखी है, कुछ और अच्छा सा पॉइंट दें नेक्स्ट टाइम बेहतरी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैं अगर थोड़ा सा, अगर मैंने वो सारा नीचे बैठ के सुना है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे भाइयों को किसी को मेरी बात कुछ समझ आ जाए, देखिए बात ये है कि वो क्या है कि अमन नज़ीर क्या है कि जब भी कोई बात करता है जहाँ पे उसको लगता है कि थोड़ा सा पॉइंट अभी यहाँ पे मेरे पास जवाब नहीं है, वो सीधा मिर्जा साहब को गाली निकालता है, जो कि नाउज़ुबिल्लाह कहने का मतलब ये है कि उसको पता है कि ये मेरा वेपन है, ये मैं करूँगा तो अगला बंदा यहाँ तो वहाँ से भाग जाएगा और मैं बाद में बोलूँगा देखिए अभी मेरी बात नहीं सुनी। देखिए आप उस बंदे से कहाँ बात हो सकती है जो थोड़ी देर बाद झूठ बोलता है। उसने बोला कि जो कुरान पाक है वो सिर्फ मुसलमानों की किताब है। तो मैं चले एक छोटी सी आपको बात कहता हूँ कि उस वो आलम तो है नहीं है, पूरी दुनिया में लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, वहाँ पे कुरान पाक पढ़ा होता है, लोग जाके पढ़ते हैं। वो ये थोड़ा कोई सिर्फ मुसलमान ने पढ़ना है, हर मजहब का बंदा जाके लाइब्रेरी से कोई भी बुक लेके पढ़ सकता है। तो कहने का मतलब झूठ का वो इस हद तक चला जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, अपने आप को वो आलम कहता है। तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि देखें जहाँ पे गाली गलौच हो जाएगी ना, उसको वेपन को यूज किया जाता है। वो वेपन तो वो किसी भी बंदे से आप नाउज़ुबिल्लाह जाके किसी हिंदू, किसी क्रिश्चियन या किसी और को ये वो करे, वो आगे से इसको ऐसी गाली निकालेगा, ये 2 मिनट भी वहां नहीं टिकेगा, ये खुद वहां से भागेगा। और उसने वहां पे खुद अपने मुंह से बोला है कि अहमदी निकालें, अब नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालो। पता है चले आप उनको गालियां निकालते, तो वो खुद ये चाहता है कि ये गालियां निकाले। वो इस मुकाम पे, इस पीक पे लेके जाता है इंसान को कि वो ऐसा करे। नाउज़ुबिल्लाह ये तो वो कहने का मतलब है कि उससे क्या आप डिबेट करोगे? जो थोड़ी देर बाद जो जहां पे उसका नीचे पॉइंट जाता है वो मिर्जा साहब को गालियां निकालना शुरू कर देता है या झूठा कहना शुरू कर देता है, आप उससे क्या डिबेट करोगे? जी रिजवान भाई आपका बहुत अच्छा पॉइंट था, पर इसमें अली भाई ये इनसे पूछने आज की जो डिस्कशन इनने सारी सुनी है, उसमें कौन सी गाली उसने दी है मिर्जा साहब को? उसने काफी दफा उसने बोला कि मिर्जा साहब तो झूठे हो गए, मिर्जा साहब को नाउज़ुबिल्लाह मिर्जा साहब तो यहाँ पे झूठे हो गए, यहाँ पे झूठे बन रहे हैं। तो ये क्या गाली नहीं है? आप किसी नबी को आप झूठा कहें? एग्जैक्ट जुमला बताएं कि किधर उन्होंने मिर्जा साहब को गाली दी है। आज जो डिस्कशन हुई है उसमें बताएं मुझे। सर आप मेरी बात सुने, गाली आप किस सेंस में कह रहे हैं कि गाली होती है? छाड़ दो कोई माँ बहन की गाली निकाले उसको गाली बोलते हैं आप? जो जब बात हो रही है भगवान भाई, देखिए बात हो रही है ना, तो आप जो अपने अल्फाजों में कज़ाब, दज्जाल, कोई हम ये कोई कहने का मतलब इन लफ्जों को आप गाली नहीं काउंट करते? रुकने बस करके भगवान आपका पॉइंट पकड़ लिया, भगवान जान के छेड़ेगा आपको, रहने दें। भगवान को पता लग गया ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਚਿੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਸਟ ਕਟੈਰਜ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਖੋਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। नहीं आप साहब। जी नज़ीर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैंने कहना था कि देखें हर मैदान में या हर दुनियावी हो दीनी हो, जिसको उसका पता ना हो, यानी कहते हैं कि मास्टर ना हो। अब अगर किसी ने कुश्ती करनी है, कुश्ती आती नहीं है, कलाई पकड़नी आती नहीं है, ठीक है, वकील है उसको वकालत से नहीं आती, तो ज़ाहिर फिर ऐसे होना है। पता है कि एक ऐसा शख्स है जिसने बार बार आजमाया हुआ शख्स है, कोई भी हो, हमें इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन जब उससे मुकाबला करना है तो फिर पहले तैयारी करो। फिर उस टीम से गुस्सा करते ने उत्थे आयत की पता इतिलन जनीम 3 दफा ना पढ़ी, इतिलन जनीम, और मैं क्या मार गया साईं, ये फाड़ ले, उत्थे अमर जी ने पढ़ लिया, उन्होंने कहा है। अब देखें वो जैसे भी है, हमारी मुखालफत देखें इस सिलसिला को कायम हुए तो 140 साल के लगभग हुए ना। 140 में अब हम जब हमारी उम्रें हैं, पहले हमारे बुजुर्ग
फिर जो हमारी उम्रें हैं इसमें, अब टिकटॉक तो अब चंद साल से होया है ना। पहले मजलिसें होती थी, महफिलें होती थी, किताबें होती थी, सवाल जवाब की मीटिंग होती थी, किरदार होता था, ठीक है। अब टिकटॉक पे आप ला लगी हुई है, पता होता अपनी किताबें पढ़ी नहीं, सही साकुस पढ़ा नहीं है, तो उन्होंने। नजीर साहब सॉरी बात काट रहा हूँ, लंबी हो जाएगी। असल में लोगों ने ना, हमारे जो बंदे गए थे, इन्होंने भगवान को सॉफ्ट कॉर्नर समझ के गए थे कि शायद हमारी साइड लेगा। भाई वो क्यों लेगा साइड? इसलिए वो लोग क्यों लेगा? ये तो बात है, भगवान है, उसका अपना काम है। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं तो अली अकबर ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। देखिए चलो उसका जो भी काम है, देखे ना सीसी भाई, उसका जो भी काम है, ठीक है। अब हमें भी पता करना, एहतियात करनी चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। अब मतलब मुझे नहीं कोई चीज का पता, तो मैं ख्वाब का पंगा ले लूं, ठीक है। याद मैं कहूँगा ठीक है, मैं मादर कर लूंगा, मुझे इस बात का पता नहीं। जैसे ही उसने हाफिज साहब तब बोला ना बीच में, उस टाइम दलीलें मुझे भी बड़ी अच्छी आई हुई थी, क्योंकि दो बंदे ऐसे हैं जो एक दूसरे को नहीं बोल सकते कि इन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। वो दो बंदे हैं, उनकी तरफ से आमर नज़ीर है, वो नहीं बोल सकता कि गुस्ताख के साथ नहीं बैठना चाहिए। देखो ना हमारी तरफ से नहीं, सुन ले जी, नहीं सुन ले, हमारी तरफ से भी ये साहिब हैं, वो बोलते हैं इन लोगों के मुंह से सिर्फ बवासीर ही बाहर आता है, पर वो भी उनके साथ ही बैठते हैं। तो ये जो दो बंदे हैं, ये किसी बंदे तो नहीं बोल सकते कि ये फलाना गुस्ताख है या फलाना ऐसा है या ये है वो है। ये दो बंदे नहीं बोल सकते, ये गुस्ताख उनके साथ बैठना नहीं चाहिए, ये दो बंदे हरगिज़ नहीं बोल सकते। पर वो उधर बोल रहा था जी अली भाई। देखें मुनाज़रे में मसला ये है कि मुझे क्या जरूरत है अगर हाफिज साहब ऊपर बैठे और मैं भी ऊपर जाके मार के अंदर वो जी एक किसी मजलिस में बात हो रही थी कि मैं मस्जिदी पेड़, दूजे ने कहा मैं मस्जिद बकरा, मैं मोहम्मदी बकरा, वो गाली मुकी, यानी वो बड़ा मुनाज़र से ईसाई ने कहा मैं मसीदी पेड़, दूजे ने कहा मैं मोहम्मदी बकरा, वो गाली मुकी, वो गाली ना कुटरी, उन्हें कहा तो बंदा साड़ी बात आ गया। नज़ीर भैया आपने बिना क्या मुनाज़रे था सूरत हाल पे। नहीं बात मैं बताता हूँ, बात वो देखो वो बात ये होती है कि बात जब मुनाज़रा होता है ना, थोड़ी मुझे कोई देखना पड़ता है कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, सामने वाला कहाँ से बात शुरू कर रहा है। हमें ये मुनासिब नहीं है कि मैंने लफ्ज़ किया, बात आपकी सही है। छोड़ दे नज़ीर साहब, बात को खत्म कर दे। एक चीज के ऊपर बार बार बात करके ना, बिल्कुल जी। जो अहमद साहब ऊपर आए, बंदा इस वक्त कभी जिंदगी में नहीं है, सो जाते हैं, सिर्फ ऊपर चस्का लेने के लिए आ गए कि 65-70 बंदे बैठे, मैं भी जाकर कुत्ते पवाना। जी अहमद साहब क्या बात करेंगे? 10 फूल मिल गए आपको सर? मेरा ख्याल सोए में ऊपर चढ़ जाते हैं। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, जो होया हो गया, ऐसे रोजाना होता है टिकटॉक के ऊपर सर। नई बात नहीं, भगवान साहब ना हो तो कुछ आखो। जो असल में जो की आंदे केड़ी मिसाल है, कहते रली चोरा ने रली है, भगवान चोरा ने रले हो जावे, कुत्ती चोरा नहीं भगवान साहब का कोई कसूर नहीं यार, उनको क्यों कह रहे बेचारों को। मैं सिर्फ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਕੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਢਦੇ। फनी होता है ਆਂਦੀ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਤੰਗ ਕਰੀਏ। ਬਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਤਮ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਊਟ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਟਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। पर हाफिज साहब वैसे आज ना सिद्धू जट सही फंसा था। नहीं फंस गया यार, सीसीटीवी फंस गया, सीसीटीवी अगों नहीं सी पर आना मान जाले यश गोविंद विला भी पता लग गया यार। मैं उस बंदे ने गल ही नहीं सी करनी ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਚੂ ਕੁਸਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਸਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਫਸਾ ਮਾਨ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਆਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਖਾ ਆਲਮਾ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਸਵਾ ਹੁਸਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ के साथ इधर ਉਹਨਾਂ जो ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ जुबान चल रही है ये किसी के भी नहीं शान शान के मंसूब की जाए तो रहने दें रिजवान भाई। और ਤੁਸੀਂ जो तो मैं कह रहा हूँ ये कौन से दीन की तबलीग हो रही है, कोई दीन को समझ तो आ नहीं रहा, किसी तरह से भी कोई दीन समझ नहीं आ रहा। नहीं बिल्कुल रिजवान भाई आपकी बात दुरुस्त है, और इधर जो भी जुबान इस्तेमाल होती है वो किसी के साथ भी मंसूब करना ये उस हस्ती के ही शान शान नहीं। जुबान का चस्का लग गया, मुझे लगता है सिर्फ जुबान का चस्का ही रह गया है। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਅਸਲ ਨਾ ਗੰਗਾ ਪੁੱਠੀ ਪੀ ਵਗਦੀ ਏ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੰਗਾ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਪੀ ਵਗਦੀ ਏ। ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਮੁਨਾਫਿਕ ਚਵਲ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। रिजवान भाई सिंपल सा जवाब दे दिया था शायद। ਯਾਰ ਇੰਜ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਰ ਗਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਦਾਦਾ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੈ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੇ। मैं तो कुछ भी नहीं मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी तेरे इश्क दे विच बदनाम होवां।